give honor to our chief guest Sandeep Malik sir. Actor, writer, director, and also an IT professional and social media influencer. Hello everyone. So I am so glad that I have an opportunity to have a small discussion with you all. First of all, let me give my introduction. I am Sandeep Malik. I am CEO and founder of Sandeep Family. How I started my journey, how I achieved my milestones, I'll discuss on that. But today I really feel honored that I have an opportunity to discuss how can we transform our passion into profession. So I remember my college days, school days, when we were very serious about our career, and we should be actually. In 2018, when my father passed away, and when COVID happened in 2020, I realized that I'm missing out something big. I realized that I'm just doing 9 to 5 job. I've worked in big MNCs like IBM, Dell, HCL, Patni, and many more. But when COVID happened, I realized that I'm missing all my passion. Because I always used to think when I was working in, corporate industry, that when I get old, I'll publish my knowledge on public platform, on social media. But as I said, I reiterate, when my father passed away, and when COVID happened, I realized that what I'm waiting for, why I'm waiting to get old. So in April 2020, I started YouTube. Vision and mission was very simple, just to share knowledge. I never knew that I will be reaching 1 lakh followers in just 1 year. So when I reached 1 lakh followers in 1 year, then again on my mentor's demand, I had multiple mentors like Rohini Mundra, Dev Gadri, they are my mentors. They told me, Sandeep, motivation will not help, information will not help, solution. Have you given any solution to your audience? This is how I transformed my YouTube channel into a corporate startup. So I started my company with the name of Sandeep with Sandy Consultancy Services Private Limited. My YouTube channel name is Sandeep with Sandy, and we are doing well. My executive Anjali, she's there. She's helping me in and out. As I said, we should follow our passion. When I started YouTube, whatever content I published, I transformed that into solutions. I transformed my technical channel into motivation channel. I started delivering motivation stories. There were many videos that went viral. Then I discovered I might get into acting. I went to multiple platforms like T-Series, Balaji Telefilms, AFT. They all acknowledged that yes, you're an actor, you have that skill. And why I'm telling you all this story? Just to let you know, I'm a living example. At the age of 42, if I can realize that I'm missing out my passion, then I don't want you to do the same mistake I was doing when I was in college. Now I can proudly say I'm a producer. I produced 2 films. One is Rohani Ishq and one is Thai Papa. We're coming up with another movie, Vishwa Kamzor Nahi. So I own a YouTube channel. I'm a social media influencer. I own a company.
I have another company, you can call them media house, Sanjay and Telefilms Private Limited. So my suggestion, my advice, my humble request is never miss out your passion. Always follow your passion. Doesn't matter. You are electrical engineer, computer engineer. I myself a software engineer and MBA in marketing and HR. So please don't miss out your passion. Why I'm saying all this? Why I have this mindset, vision? We have no guarantee if we have a second life. We might have only one life. Then why are we missing out what we want to do? So मेरा तो ये भी कहना है, मैं हमेशा कहता हूँ सब कुछ कर डालिए, कुछ मत छोड़िए, लाइफ का पता नहीं है, लाइफ इज टेम्परेरी. अभी मैं बाहर जाऊँ, रहूँ ना रहूँ, लाइफ इज देयर इज नो गारंटी. तो जो भी आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में कर डालिए. सोचिए मत कि मैं वो कर लूँगा तो अब ये करूँगा. जैसे मैं सोच रहा था when I was into my corporate life, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा, I'll share my knowledge on public platform. Never ever do that. वो तो मेरे फादर पास के लिए कोविड हाथ में रियलाइज कि मैं क्या कर रहा हूँ. व्हाट आई एम वेटिंग फॉर. मैं बुढ़े होने की वेट क्यों कर रहा हूँ, मैं रिटायर होने की वेट क्यों कर रहा हूँ. आई शुड स्टार्ट पब्लिशिंग माई नॉलेज ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म राइट अवे. दिस इज व्हाट आई डिड. एक्चुअली माइलस्टोन 1 लाख फॉलोअर हो गए. देन आई रियलाइज आई एम एन एक्टर. तो अपना पैशन को मिस मत करिएगा. अब पैशन कैसे ढूंढेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है. कैसे ढूंढे अपना पैशन. पैशन वो चीज है, वो इंटरेस्ट है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी, वो है पैशन. तो जैसे मेरे साथ हुआ, जब मैं अपनी कंपनी खोली तो मेरा यूट्यूब वॉज ए ग्रैंड सक्सेस. मैंने कंपनी खोली, अब मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. दिन रात, जैसे आप लोगों ने काफी कहा कि टाइम निकालना. अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो टाइम तो अपने आप निकलेगा, तो उसमें निकालने की जरूरत नहीं है. आप दिन रात में सोचेंगे मुझे अब ये करना है, मुझे वो करना है, अरे मेरा वो कोडिंग मिस हो गया, अरे वो लेक्चर मिस हो गया. तो यही चलता था मेरे दिमाग में. मैंने मोर देन 25 years आई वर्क इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, वर्क इन मेनी बिग कंपनीज. माय लास्ट कंपनी वाज आईटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. आई वर्क देयर फॉर मोर देन 11 years. तो अब जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा, मैं रोज 4 वीडियो डालता था और मैं यूट्यूब चैनल आई हैव मोर देन 250 वीडियोस. आप देख सकते हैं सैंडी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है. दैट हैज मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स. तो मैं 4 वीडियो डालता था दिन में. मेरे घर वाले परेशान कि हुआ क्या. तो मैंने हमेशा कहा है कि समझदार आदमी सक्सेस नहीं पा सकता, थोड़ा सा पागल होना पड़ता, थोड़ा सा पागल, जुनूनी होना पड़ता. तो वही मेरे साथ हो रहा था. जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, मैं दिन में 4 डाल रहा हूँ वीडियो. मेरे घर वाले परेशान है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ठीक से सो रहा हूँ. और जब 1 साल में मेरे 1 लाख फॉलोअर हो गए, जो सिल्वर प्ले बटन हाथ में आया, तो समझ आया मैं एक्टर तो नहीं हूँ. मैं अच्छी अच्छी कहानियां बना रहा हूँ, कहानियां पब्लिश कर रहा हूँ, लोग इतना लाइक कर रहे हैं, इतना कमेंट कर रहे हैं, इतने व्यूज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं. तो फिर मैं गया. अब क्योंकि एज ऐसी थी 42, अब यहाँ पे मैं हिट एंड ट्रायल तो कर नहीं सकता था. आई कांट डू एक्सपेरिमेंट कि चलो भाई कोशिश ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं. तो मैं गया प्लेटफॉर्म्स, बड़े बड़े टी सीरीज गया, AFP मैंने बताया था बालाजी. तो उन्होंने एक्नॉलेज किया, अरे नहीं सर, यू आर एन एक्टर, मिसिंग आउट समथिंग बिग. तो मैंने फिर टी सीरीज से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली. आई एम ट्रेन्ड एक्टर फ्रॉम टी सीरीज. मैं अभी बालाजी एकेडमी जाता हूँ, टेलीफिल्म्स, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग चल रही है. लेकिन मैंने इस दौरान जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो मुझे कहानियां बनाने का बड़ा शौक है. तो मैंने 2 कहानियां लिखी मूवी बनाने के लिए, खाली लिफाफा और रूहानी इश्क. तो मैंने अब 2 फिल्म बना ली है. एक फिल्म हो सकता है थिएटर पर लाए, रूहानी इश्क, और एक तो OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी. हाँ. अब मैं एक क्यों कहानी बता रहा हूँ कि आप ऐसे करें. आप प्लीज मिस ना करें अपने पैशन को. बनिए इंजीनियर, बनिए जो मर्जी करिए. अगर आपके अंदर म्यूजिक है या आप सिंगर हैं, उसे मिस मत करें. पैरेलली वो चलाते रहें. हो सकता है कि आप यू आर वेरी गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर, पर आपके अंदर कहीं एक्टर छुपा हुआ है, आपको पता ही नहीं है. उस पैशन को ढूंढिए, उसको फॉलो करिए. और पैशन को हम कैसे ढूंढेंगे? कोई भी काम, कोई भी इंटरेस्ट जिसको करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स अ पैशन. और यहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत बातें हुई. आई एम ए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ट्रेनर, आई एम ए कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर डेवलपर. सो कम्युनिकेशन क्या होता है
एक बहुत बड़ा मिथ है, आप लोगों को पता होगा, यू आर वेरी एजुकेटेड। कम्युनिकेशन का मतलब खाली ये नहीं है कि हमें इंग्लिश आती है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि भाई हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वी हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा तो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, मराठी में हो सकता है, तमिल में हो सकता है, राइट। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। टेक्निकल लैंग्वेज में एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट। इफ यू कैन इनकोड योर मैसेज एंड डिकोड। अब आप पूछेंगे ये इनकोडिंग डिकोडिंग क्या है, अगर आपको नहीं पता है। इनकोडिंग इज इफ यू आर एबल टू डिलीवर योर मैसेज एंड इफ यू आर एबल टू रिसीव द मैसेज। अगर आप अपने मैसेज को कन्वे कर पा रहे हैं और अच्छी तरह रिसीव कर पा रहे हैं, वेरी गुड कम्युनिकेटर, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो डजंट मैटर, अभी एक ने बताया कि इंटरव्यू में डजंट मैटर कि अगर आप इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं तो आप अटक जाइए, नहीं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है इसलिए कम्युनिकेट करिए। अब एक सवाल और आता है कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, या अच्छा कम्युनिकेशन क्या होता है। अच्छा कम्युनिकेशन होता है टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। कम्युनिकेशन का उद्देश्य खाली ये नहीं है कि हमने मैसेज कन्वे करा, रिसीव करा। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट हाउ यू क्रिएट एन इम्पैक्ट। अगर आपने इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया, देन यू आर ए गुड कम्युनिकेटर। इवन इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, you are in a corporate job. So if you know the art of communicating, if you know how to create an impact, you can do wonders, right? तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, हमेशा सर भी हमेशा यही बोलेंगे, सारे टीचर्स बोलेंगे, अपने पैशन को फॉलो करें। यू आर इवन इफ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, जो भी आपका स्किल है, प्रोफेशनल स्किल है, अपने पैशन को जरूर ढूंढिए। क्या पता कुछ ऐसा कर जाए जो आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। जैसे मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ, मुझे तो मेरा सपना था कि मैं फिल्में बनाऊंगा, अपनी कंपनी खड़ी करूंगा। तो जब मैं एक छोटा सा आदमी कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, वो भी एट द एज ऑफ 40। तो अपने पैशन को ढूंढिए। क्या पता आप में से कोई सिंगर हो, लता मंगेशकर हो, आपको पता ही नहीं। आप में से कोई शाहरुख खान हो, आपको पता ही नहीं, राइट। आप में से कोई बहुत ही अच्छा डायरेक्टर हो, आपको पता ही नहीं है। कोई बहुत ही अच्छा एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, आपको पता नहीं है। So always try to transform your passion into profession. Become a passion player. अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ठीक है हमने पैशन ढूंढ लिया, पैसे कहाँ से आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पेरेंट्स हमेशा यही कहते हैं, अरे पैशन में क्या करेंगे, पैसे कमा भी, कितना पैकेज आया, ठीक है, क्या करेगा सिंगर बन के, क्या करेगा एक्टर बन के, क्या करेगा यूट्यूब खोल के। इट्स अ वेरी $1 million क्वेश्चन। अब इसमें बहुत बड़ा कैच है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, तो पैशन का मतलब है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, जो बाय प्रोडक्ट अपने आप आएगा। कहते हैं ना, एक कहावत है कि काबिल बने काबिलियत झक मारता है। ये बहुत ही फेमस बोला जाता है, काबिल बने काबिलियत झक मारता है। तो इसलिए प्लीज पैशन को फॉलो करें, काबिलियत को झक मार के आए। मनी इज द बाय प्रोडक्ट, राइट। सो आई थिंक मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बट मैं ये क्यों इतना कुछ मैंने स्टोरी नरेट करा कि मैंने मिस किया था कॉलेज टाइम में। मुझे अपने पैशन के बारे में नहीं पता था, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब को बहुत जरूरी है, आई एम सो ग्लैड यू वेरी गुड प्लेसमेंट्स व्हिच इज रियली गुड। तो आई थिंक I should conclude by saying that please follow your passion and try to transform your passion into profession. क्या पता आप क्या बन जाए। ये जो बिल गेट्स हैं, इतने बड़े बड़े नामी लोग हैं, हमें क्या लग रहा है कि उन्होंने कुछ जादू का चिराग मिल गया उन्हें, या कुछ उनको जादू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़े पागल थे। मैंने हमेशा कहा कि समझदार आदमी रॉकेट नहीं बना सकता, थोड़ा सा जुनूनी बनना पड़ता है, थोड़ा सा पागल बनना पड़ता है। थोड़ा सा पागल बन के देखिए, अपने पैशन को फॉलो करके देखिए, दिन रात उसी के बारे में सोचिए। और एक चीज जो हम मिस करते हैं, मैं बिफोर आई कंक्लूड, एजुकेशन जो मैंने रियलाइज करा हमेशा, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम पढ़ते हैं नंबर के लिए, मैंने भी यही किया था, हम नंबर्स के लिए पढ़ते हैं। हम नॉलेज के लिए, आजकल शायद सिनेरियो चेंज हो गया हो, आई डोंट नो, पर मेरे टाइम में हम स्कोर पे बड़ा हमारा ध्यान था।
हम नंबर से बड़ा ध्यान देते थे। आई थिंक हमें एजुकेशन पे नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमने सीखा क्या, हमें समझ क्या आया, हमें नॉलेज क्या है। और एक बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल बुक्स में ये मेंशन है कि हमने पढ़ाई तो कर ली, हम बन गए स्कॉलर, मॉरल एजुकेशन तो है नहीं हमारे पास। होता यही तो है, हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, सबसे पहले हम यही पूछते हैं, हाँ भाई कितने नंबर आए, आज क्या पढ़ाई करें। हम ये नहीं पूछते कि बेटे आज मजा आया, मजा आना चाहिए, पैशन अबाउट मजा टू मेक अ लाइफ जॉयफुल। ये मेरे कंपनी का मोटो भी है, सनी एंड सैंडी मेक अ लाइफ जॉयफुल, मेकिंग लाइफ जॉयफुल। तो हम बच्चों से क्या पूछते हैं, नंबर कितने, हम ये नहीं पूछते बेटे मजा आया, कुछ सीखने को मिला, किसी की हेल्प करी, हम ये तो पूछते नहीं। अगर ये सोचिए हम हर बच्चे से ये पूछें कि बेटे आज क्या पढ़ाई करी, क्या समझ आया, किसी की हेल्प करी, अब बच्चों को समझ आएगा कि नंबर तो इतनी जरूरी है नहीं। मेरे मम्मी पापा तो ये पूछ रहे हैं कि कुछ समझ आया, कुछ सीखा और किसी की हेल्प करी। तो कंडीशनिंग, मेरे पास तो खैर बहुत कुछ है बताने को, टाइम बहुत कम है। कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वंस यू आर कंडीशन्ड टू वर्क ऑन ए पॉजिटिव साइड, और आप अगर जो भी आपकी एनर्जी है उसको ठीक से आप चैनल कर लेंगे तो यू कैन अचीव एनीथिंग। आई एम गिविंग एग्जांपल, जैसे मेरे लिए सपना था प्रोड्यूसर बनना। मैं आज एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैं अगली मूवी डायरेक्ट करने वाला हूँ, और मेरी आज किसी कंपनी, आई एम टू लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आई एम टू काउंसलिंग, कोचिंग, आई एम टू रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस एंड ऑल दैट। So I wish you all the best and thank you so much for inviting me. Thank you so much for inviting me. Take care. All the best.